मैडम लाइव जा रही हैं, आप बताएं आज जश्न आज़ादी के हवाले से क्या किया? जी, तमाम कौम को और दियारी गैर में बसने वाले तमाम पाकिस्तानियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत आज़ादी की मुबारक और अल्लाह ताला पाकिस्तान को ता क़यामत इसी तरह कायम रखे। ये जी हम हॉल में जा रहे हैं। ठीक है, नुक्कड़ करके ला रहे। अच्छा ठीक है। सबसे पहले आप तमाम मेहमान गिरामी, पाकिस्तानी कम्युनिटी, आप सबको मेरी तरफ से, पाकिस्तानी काउंसलेट की तरफ से खुशामदीद और अस्सलाम वालेकुम। आज सब हम लोग यहाँ जमा हैं पाकिस्तान का 78 यौम आज़ादी मनाने के लिए, और ये दिन हमें याद कराता है तमाम स्ट्रगल्स, तमाम जस्तजू जो हमारे बुजुर्गों ने की बरसगीर में एक आज़ाद मुल्क हासिल करने के लिए, जिसका नाम पाकिस्तान है। लेकिन आज इस साल की जो यौम आज़ादी है वो एक ख़ास यौम आज़ादी इस वजह से भी है
कि हाल ही में जैसा कि हमने देखा कि हिंदुस्तान ने एक जारहियत का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को थ्रेटन किया, जिसके जवाब में पाक फौज हमारे इदारों ने एक बहुत ही फिटिंग किस्म का उसे रिस्पॉन्स भी दिया और इसे मार का हक का नाम दिया गया और इस जारहियत को जवाब देते हुए कामयाब ऑपरेशन को भी सदर ने अंजाम दिया, जिसको आज हम सेलिब्रेट भी करेंगे, जिसको हम मनाएंगे। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ हम तिलावत कुरान पाक से करेंगे, जिसके लिए मैं जनाब वहीद अहमद साहब को कहूँगा कि वो प्लीज आएँ और तिलावत कुरान पाक से प्रोग्राम का आगाज़ करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العظيم. इसके बाद हमारे पास पैगामात हैं सदर पाकिस्तान के, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और नायब वज़ीर आज़म और फॉरेन मिनिस्टर जनाब मोहम्मद सागदार साहब के, जो कि आप लोगों को पढ़ के सुनाए जाएंगे। तो इनका आगाज़ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जनाब फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब मोहम्मद इसहाक डार साहब के पैगाम से मैं करूँगा और क्योंकि इंग्लिश में है तो इसको ऐसी जुबान में वर्बैटम पढ़ना जरूरी है। तो on the joyous occasion of Independence Day, I extend my warmest greeting to the people of Pakistan and our compatriots worldwide. Today, we honor the visionary leadership of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah and the countless sacrifices of the Pakistan movement workers, whose unwavering resolve secured our homeland. Guided by unity, faith, and discipline, Pakistan stands tall as a resilient nation of over 250 million people, proud of our shared heritage and collective strength. Over the past 78 years, Pakistan has made remarkable strides from a robust agricultural base to thriving IT exports. From hosting global events to transformative infrastructure projects, our nation have advanced dramatically in science, technology, and economic development. These achievements reflect our commitment to a brighter future and our meaningful contributions to global peace. Today, we also celebrate a camp of Marka-e-Haq, where Pakistan excelled on both military and diplomatic fronts. Our principled and robust response to India's unlawful actions secured a moral and political victory, reaffirming our unwavering commitment to protect our security through military preparedness, diplomatic finesse, and national unity. We have demonstrated our resolve to safeguard sovereignty while upholding global peace. The Kashmir cause remains just, the rights of Kashmiri people inalienable, and Pakistan's support for their struggle unshakable until justice prevails. As we commemorate this day, let us renew our dedication to a stronger, more secure and prosperous Pakistan. Freedom is not merely inherited, it is strengthened, it is earned and preserved through responsibility, discipline and unity. Our greatest strength lies in the upholding democracy, peace and justice. Pakistan is not just a land, it is an enduring idea, a sacrificed promise and shared duty.
पाकिस्तान जिंदाबाद। कुछ मेरे ख्याल से ख़वातीन यहाँ पे मौजूद हैं, तो काइंडली अगर कुछ जगह को दे सके जी 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 वेलकम जी सर किधर है? प्लीज हैव अ सीट। बाकी भी आप कुछ थोड़ी जगह दे दें ताकि बाहर भी जितनी लेडीज हैं उसको प्लीज बुला लें के साथ आके कर चले जाइए। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का पैगाम पढ़ने के लिए कम्युनिटी वेलफेयर साहब से जनाब डॉक्टर वकार अली खान साहब को दावत दूंगा कि प्लीज वो स्पीच लाएं और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का पैगाम पढ़ने का मैं जी आपके सामने वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का पैगाम बैठन पढ़ना चाहूँगा ताकि उनके जज्बात इस यौम आज़ादी के सिलसिले में आखिर पहुँच सकें। आज के दिन अल्लाह ताला के हुज़ूर सजदा शुक्र अदा करते हुए पाकिस्तान के 78 साल मुकम्मल होने पर कौम को तहरीर से मुबारकबाद पेश करता हूँ। बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और मुफ़क्किर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल समेत तहरीक आज़ादी के बुलंद हिम्मत दूर अंदेश कायदीन और कारकुनों को सलाम पेश करता हूँ, जिन्होंने बिखरी हुई कौम को एक फ़िक्र, एक मिशन और एक नस्ल-ए-ऐन पर न सिर्फ मुत्तहिद किया बल्कि अपनी बलबला अंगेज़ सियासी जदोजहद के ज़रिए तारीख़ का धारा मोड़ कर एक अलग नज़रियाती रियासत के क़याम के नामुमकिन समझे जाने वाले ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर कर दिखाया। गुज़रे 78 साल आजमाइश हमें सफ़र अल्लाह पर कामिल यकीन और ताबनाक मुस्तक़बिल की उम्मीद की कहानी है, जिसमें हमें बतौर कौम कई मुश्किल मराहिल से गुजरना पड़ा, लेकिन इस सब के बावजूद पाकिस्तान ने हर शोबे में कामयाबियों और कामरानियों के कई संग मील अबूर किए। मईशत से खेल के मैदानों और दिफा से IT तक हर शोबे में पाकिस्तान ने अपनी मिसाल अज़्म व हिम्मत और इल्म व हुनर के बाद रकम किए। भारत की मुसल्लत करदा जंग 6 से 10 मई 2025 के दौरान मार्का हक में पाकिस्तान की अजीम फतह ने 78वीं यौम आज़ादी की ना सिर्फ अहमियत में इजाफ़ा कर दिया है बल्कि पाकिस्तानियों के दिल में एक नई उमंग और जज्बा पैदा किया है, जिससे जश्न आज़ादी की खुशियाँ दोबाला हो गई हैं। अल्लाह ताला के फजल से
भारत के इस हमले में अपनी ताबिंदा रवायात दोहराते हुए हमारी बहादुर मुसल्लह फ़ौज ने बनियान महसूस बंद कर दुश्मन के गरूर का बुत पाश पाश कर दिया। हमें हमारे शेरों और शाहीनों की अस्करी महारत, बहादुरी और जज्बा ईमानी ने दुश्मन को चंद घंटों में घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। आज़ादी की ठंडी छाँव फराहम करने वाले शोहदा को खिराज अकीदत पेश करते हुए इनके दर्जात की बुलंदी की दुआ करते। ये सिर्फ अस्करी फतह न थी बल्कि दो कौमी नज़रिए की सदाकत की भी जीत थी जो वतन अजीज़ की असास है। हम अपने दिफा और आबी वसाइल समेत कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इसी जज्बे से आगे बढ़ते रहेंगे। मैं तमाम सियासी जमातों और तमाम तबक़ात को आज के दिन पर पुरखुलूस पेशकश करना चाहता हूँ कि इत्तेहाद व इत्तेफाक से कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के लिए इश्तराकी अमल की राह अपनाएँ ताकि हम बहैसियत मजमूई कौम को तरक्की और खुशहाली की इस मंजिल से हम किनार करें जिसका ख्वाब क़यामत पाकिस्तान की सूरत में हमारे असलाफ और शहीदों ने देखा था। इसके बाद मैं स्टेज पे दावत देना चाहूँगा इमिग्रेशन लाइजन ऑफिसर जनाब असमतुल्लाह जलील साहब को कि वो आएँ और स्टेज पे सदर पाकिस्तान का पैगाम पढ़ते हैं। Good morning, ladies and gentlemen. First of all, I would like to thank all the Italian guests who are here. Since this is the 78th Independence Day of Pakistan, we are celebrating it and we have to just deliver the messages that have been given to us in our national language. So this could be one of the limitations, as a result of which you may not be able to understand that what actually that message says. But whatever message I'm going to read in Urdu, it's basically going to be the words and the emotions of 240 million people of Pakistan that we are going to share with you over here. And once this message is going to be over, I will give you a brief summary of what the President of Pakistan has conveyed to the Pakistani community in Italy and the people of Italy at large. So I start the message of the President of the Islamic Republic of Pakistan, Sadr President Asif Ali Zardari. मैं मादरे वतन के आज़ादी के 78वीं सालगिरह के मौके पर पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले तमाम पाकिस्तानियों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये दिन हमें इस जुर्रत, हिम्मत, इत्तेहाद और कुर्बानियों की याद दिलाता है जिसकी बदौलत आज हमें आज़ादी की नेमत से मालामाल हुए। आज हम अजीम कायद आज़म मोहम्मद अली जना और तहरीक पाकिस्तान के तमाम कारकुनान का खराज अकीदत पेश करना चाहते हैं जिनकी काविशों और कुर्बानियों की वजह से आज हमारा ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हुआ। इस साल हम यौम आज़ादी बड़े इफ्तिखार और ताज़ा उम्मीद के साथ मना रहे हैं। हाल ही में हमारी फ़ौज ने बैरूनी जारियत के जवाब में अपनी ताकत, अज़म और इत्तेहाद का मुज़ाहरा किया। मार्काए हक और ऑपरेशन बुनियादुल मसरूफ में हमारी फतह हमारी तारीख का एक सुनहरी बाब है। ये कामयाबी गैर मुतज़्ज़ल कौमी मंजिल, बेमिसाल पेशावराना महारत और पूरी कौम के इत्तेहाद का सबूत है। भारत की बिलाजवाब जारियत के जवाब में हमने तहम्मुल, हिकमत अमली और फिर भरपूर कुव्वत से अपने वतन का दिफा किया। दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान अमन चाहता है, मगर हम अपनी खुदमुख्तारी और इलाकाई खुदसालमियत के तहफ़्फ़ुज़ की मुकम्मल सलाहियत रखता है। यह फतह हमारे अवाम के नए एतमाद का ज़रिया बनी। इसने कौम के हौसले बुलंद किए, इदारों पे एतमाद मज़ीद मजबूत किया और पाकिस्तान की आलमी मकाम को मज़ीद मुस्तहकम किया। आज दुनिया पाकिस्तान को एक ऐसे मुल्क के तौर पर देखती है
जो अमन का ख्वाह हो, मगर दबाव के आगे नहीं झुकता। लेकिन ये लम्हा अस्करी कामयाबी नहीं बल्कि इस अमर की भी याद दहानी करवाता है कि जब हम मुत्तहिद हों, यकसू हों और एक मुश्तरका मकसद की खातिर पुरअज़्म हों तो हर शोबे में हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तकनीकी तरक्की, इदारजाती इस्लाहात और माहौली तहफ़्फ़ुज़ की जानिब हमने अपना ध्यान मुतय्यन करना होगा। यही नज़्म, जुर्रत और हिकमत जो भारत के खिलाफ हालिया कामयाबी का बायस बनी, हमें गुर्बत के खात्मे, अवाम के लिए मौक़े पैदा करने और एक मुनसिफाना और हमागीर माशरे कायम करने में भी कामयाबी से हमकिनार कर सकती है। इस दिन हमने भारतीय ज़ेर कब्ज़ा जम्मू और कश्मीर के अवाम के साथ इज़हार यकजहती भी करते हैं। उनकी जुर्रत, इंसाफ और हक़ खुदराइयत की जद्दोजहद हमारे दिल के बहुत करीब है। पाकिस्तान इनके हक़ खुदराइयत के हुसूल तक कश्मीरियों की गैर मुतज़लज़ल सिफारती, इखलाकी और सियासी हिमायत जारी रखेगा इंशाअल्लाह। आइए इस यौम आज़ादी को अपनी तारीख का एक नया बाग बनाकर और अपने इख्तिलाफ़ात से बालातर होकर ऐसे पाकिस्तान के लिए मुत्तहिद हों जो इंसाफ, मसावत, ईमान और खिदमत खल्क़ पर कायम हो। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो। आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद। In this message that I delivered on behalf of the President of Pakistan, the President of Pakistan basically said that the Pakistan resulted as insensate struggle of the people of South Asia, and as a result of that struggle, 78 years ago, the people of the South Asia was successful in getting Pakistan as an independent nation. The President has also said that we should have the same resolve and courage and dedication to mitigate the problems that we have right now, which include poverty, socio-economic upliftment, and many other challenges. The President is also hopeful that if the Pakistani community abroad is all acting like a unified force, we can overcome every challenge. Pakistan Zindabad. Thank you very much. शुक्रिया सर। इसके बाद मैं दावा देना चाहूँगा काउंसिल जनरल एजेंसी जनाब मुराद वसीर साहब को कि वो आएँ और आज के प्रोग्राम की मुनासबत से अपने ख्यालात का इज़हार करें। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत खुशी हो रही है मुझे। मैं बहुत ही आपसे इनफॉर्मली और पुरतकल्लुफ़ तरीके से बात करूँगा। और दो मौका हमारी जश्न आज़ादी का है और मैं समझता हूँ कि हमारे लिए बहुत ही इस साल के हवाले से जो इवेंट्स हुए, जो मार्केट हुआ, जिसमें हमारे जो बहादुर फौज, बहरी, बरी और फ़ज़ाई, उन्होंने अपनी सलाहियतों का मुज़ाहरा नहीं किया, बल्कि उन्होंने इस बात का अज़्म किया कि पाकिस्तान पे वो आँच नहीं आने देंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे लिए, हम सब के लिए, तमाम पाकिस्तानियों के लिए। इट्स नॉट जस्ट कि जो यूनिफॉर्म में जो हैं उनका काम है, हमारा काम भी हर लेवल पे, हर सतह पर, जहाँ पे भी आप लोग दियारे गैर में हैं, आपकी भी जो यहाँ पे जो भी आप करते हैं अपने अमल से, अपने काम से, अपने हर चीज़, वो हम पाकिस्तान की जंग लड़ रहे होते हैं, पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इनकी जंग लड़ रहे होते हैं, पाकिस्तान की आन और शान के लिए लड़ रहे होते हैं, पाकिस्तान की जंग लड़ रहे होते हैं, पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इनकी जंग लड़ रहे होते हैं, पाकिस्तान की आन और शान के लिए लड़ रहे होते हैं। ये सिग्निफिकेंस है और उसमें ज़ाहिर है हमारे आबा व अजदाद ने जो स्ट्रगल की, कुर्बानियाँ दी, जो पाकिस्तानी फैमिलीज़, मेरी फैमिली, मैं खुद एक ऐसी जगह से ताल्लुक़ रखता हूँ जो भी हिंदुस्तान की तसल्लुत में है, लेकिन मेरे आबा व अजदाद पाकिस्तान आए और छोड़ छाड़ के सब कुछ।
ये एक बहुत सारे ख़ानदानों का कि कोई ना कोई स्टोरी है जिन्होंने पाकिस्तान के लिए किसी न किसी मौके पर कुर्बानी दी। तो ये उस अहद की तजदीद है, उस दिन, ये दिन वो है जिसमें उस अहद को उसको कहते हैं कि हम पाकिस्तान के लिए सब कुछ करेंगे, जो हमारे बस में होगा वो करेंगे। अब मैं बात करूँगा अपनी, क्योंकि मैं मेरा पहला इवेंट है कम्युनिटी के साथ, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं अपना तारुफ ठीक कराऊँ आपसे। मेरा नाम जी मुराद बसीर है और मैं पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं किस जगह से ताल्लुक़ रखता हूँ ये नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि मैं काफ़ी जगह पर रहा हूँ पाकिस्तान और दुनिया भर में भी। तो मैं इतना कह सकूँगा कि मैं जी करियर ऑफिसर हूँ पाकिस्तान फॉरेन सर्विस का जी, और मैंने बड़ा करम किया और मुझे इस अहदे के लिए चुना, इस सर्विस के लिए चुना, जिसमें मैंने पाकिस्तान के लिए गिरा जो हो सकता था किया। मेरा जी करियर स्टार्ट हुआ था इस्लामाबाद से, मिनिस्ट्री फॉरेन अफेयर्स से, और उसके बाद मेरी पहली असाइनमेंट थी कायरो में, कायरो में रहा हूँ। उसके बाद मैंने डेनमार्क में कुछ टाइम गुजारा है। आई एम श्योर आपके कोपेनहेगन में बहुत सारे एजेंसी में बहुत सारे लोग होंगे जानने वाले, मेरे भी बहुत जानने वाले हैं, अभी भी रब्ता करते हैं, बड़े खुश हैं कि मैं वापस यूरोप आ गया। और उसके बाद मेरी पोस्टिंग की स्विट्ज़रलैंड में थी, बर्न। मैं इस इलाके से बिल्कुल वाकिफ़ हूँ, क्रॉस दी एल्प्स रहा हूँ। तो एल्प्स के जो पहाड़ हैं और मिलान में इस पहाड़ ही आते थे, तो मैं मिलान अक्सर आता था उस दौरान जब मैं बर्न में था। और मुझे नहीं पता था कि मैं मिलान में रहूँगा, मिलान में मेरी पोस्टिंग हो जाएगी उस वक्त। ये कि मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस इलाके को भी जानता हूँ और कम्युनिटी से भी मेरा बड़ा अच्छा एक ताल्लुक़ रहा है हमेशा से, स्पेशली कोपेनहेगन में और बर्न में जो भी कम्युनिटी थी हमारी अच्छी, बहुत अच्छे लोग थे, बहुत अच्छे जानने वाले थे, उनके साथ भाइयों जैसा सलूक किया, भाइयों जैसा रहा। उन्होंने भी हमारा ख्याल रखा, हमने उनका रखा, उन्होंने हमारा रखा, और एक दूसरे के लिए जगह बनाई। किसी ने किसी को फोर्स नहीं किया, किसी ने किसी को ज़दोबोह नहीं किया। तो मैं उसके बाद जी दोहा गया, कतर में पोस्टिंग थी, फिर मैं मिनिस्ट्री फॉरेन अफेयर्स ऑफिस गया, और मेरी जो लास्ट असाइनमेंट थी वो बतौर सफ़ीर थी ज़िम्बाब्वे में। और मैं अल्लाह का बड़ा शुक्र है, मैंने बहुत इज़्ज़त की, बहुत कर्म किया। और जब मुझे मिलान की असाइनमेंट का कहा गया तो हमने मनोमन जिस तरह हुक्म माना जाता है, जो अच्छे अफसर जो हुक्म मानते हैं, हमने मैं बिल्कुल। तो अल्लाह का शुक्र है जी, आई एम वेरी हैप्पी कि मैं यहाँ पर आया हूँ और मुझे एक मौका मिला है कम्युनिटी के साथ बहुत कुछ करने का। मेरे बहुत सारे प्लान्स हैं और मैं समझता हूँ कि उन प्लान्स में से दो मेजर जो चीज़ें हैं वो कि तो कम्युनिटी की सर्विसेज, कम्युनिटी को जो हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कम्युनिटी के जो मसले मसाइल हैं, जो हमारा मेजर रोल है इस काउंसलर का, जिसकी वजह से ये काउंसलर बना है। और दूसरा जो अहम तरीन जो रोल है, जिसमें मेरे ख्याल में आप मेरी मदद भी कर सकते हैं, वो है ट्रेड एक्टिविटी को जनरेट करना, तिजारत के हवाले से। इटली से पाकिस्तान या पाकिस्तान से इटली, अगर आप में से वो हज़रात जो बिज़नेस में इन्वॉल्व हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, मार्केट को जानते हैं, वो ज़रूर मुझसे आके मिलें, अपॉइंटमेंट लें, ताकि मैं भी जान सकूँ कि यहाँ क्या क्या पोटेंशियल है बिज़नेस का, तिजारत का। तो ये मेरी छोटी सी गुजारिशात थी, और मैं शॉर्ट इसलिए रखूँगा क्योंकि अभी हमारी 1 मिनट की एक मालिका हक पे एक डॉक्यूमेंट्री है जो मैं चाहता हूँ आप लोग देखें, आप लोग उस चीज़ को समझें कि किस तरह हमारी जो पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप इस अहम मोड़ पर, जब हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहरीत की, पहले तो ये होता था कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे अमूमन मामला होते थे। इस दफ़ा उन्होंने मेरे ख्याल में लाइन क्रॉस की और उन्होंने इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस किया, हमारे सिविलियन ठिकानों पर अटैक किया, हमारे क्रिकेट ग्राउंड पर अटैक हुआ, वहाँ के मिसल गिरे, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में मिसल गिरे, वहाँ पे कौन टेररिस्ट था, मस्जिद को निशाना बनाया। तो ये जो सब चीज़ें हैं, ये वहाँ की जो लोकल डायनेमिक्स हैं, लोकल पॉलिटिक्स हैं, वो अपनी जनता को से वोट लेने के चक्कर में, क्योंकि बिहार का इलेक्शन आने वाला है, बिहार इज़ अ वेरी बिग स्टेट इन इंडिया,
तो वो बस वो हर दफ़ा ही जब वो कोई इलेक्शन होता है तो वो इस तरह की कोई गेम चला देते हैं। और वो पाकिस्तान, देखें बात ये होती है कि अगर कोई जेन्युइन चीज़ हो भी तो फिर भी बंदा शायद कर सके, लेकिन कभी होता ही नहीं, कुछ निकलता ही कुछ नहीं है। ना उनसे वो बंदे पकड़े गए, ना वो 7 लाख फौज उन्होंने रखी है कश्मीर में, उनसे वो ना बंदे पकड़े गए, ना उनसे सिक्योरिटी कंट्रोल होती। तो दैट इज़ नॉट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट दैट डज नॉट मीन कि आप जो है इंडिपेंडेंट सॉवरेन कंट्री आज़ाद मुल्क पे जाहिलियत कर दें। तो वो वाला करम हुआ कि अल्लाह ने बहुत करम किया कि हमारी जो आर्म फोर्सेज हैं, स्पेशली पाक फ़ज़ाइया के जो अफसरान हैं, जिनमें से कुछ अफसरों को मैं जानता भी हूँ जो इस मिशन में शामिल थे, उन्होंने किस तरह इस सारी कैंपेन को डील किया और पहली रात को ही असल में हिंदुस्तानियों को वो मज़ा दिखा दिया कि जो वो सोच भी नहीं सकते। पाक फौज पाकिस्तान। तो आपको ये भी इल्म होना चाहिए कि जो हमारे करंट डिफेंस एडिशी हैं इस वक्त रोम में, वो खुद J-10 के पायलट हैं, वो J-10 जहाज लेके आए हैं। तो वो एक उनसे मेरा रब्ता रहता है और इनके जो दूसरे साथी जो इस मिशन में इन्वॉल्व थे उनसे भी मैं आज से मुलाकात रही मेरी। तो वो बहुत खुशी होती है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है, इसलिए क्योंकि इन्होंने बरसों की मेहनत से ये अचीव किया। ये एक दिन में अचीव नहीं हुआ, ये महारत जो है एक दिन में अचीव नहीं की। उन्होंने मेहनत की, उन्होंने अपने आप को ट्रेन किया फॉर एनी इवेंचुअलिटी, और उसके लिए उन्होंने अपने वसीयतें लिख के गए थे। आपने देखा होगा जब वो तस्वीरें आई थी, जो पायलट्स जो थे जो गए थे उस मिशन पे, स्पेशली जो S-400 जिस J-17 की जो डिस्ट्रॉय किया, वो जो लोग हैं दे न्यू दे वर गोइंग इन द आर्म्स वे। वो उनकी ज़िंदगी जो है ना वो हो सकता है वापस ना आ सके, लेकिन ये जज्बा था जिसकी वजह से वो मेरे ख्याल में वो ट्रेनिंग थी, वो मेहनत थी, वो लगन थी, वो इस मुल्क से मोहब्बत और प्यार था, जिसकी वजह से वो गए। और हमें इस चीज़ की पूरी जो है ना हमें सपोर्ट करनी चाहिए, क्योंकि हम एज ए कौम हैं, अगर हम कौम हैं, हम आर्म फोर्सेस के साथ हैं, तो अल्लाह ताला अपना करम करेगा और पाकिस्तान पे आँच करेगा। मैं समझता हूँ कि इस वक्त लंबा प्रोग्राम हो जाएगा, 30 मिनट का ये डॉक्यूमेंट्री है, ये आप ज़रूर देखें। और आपसे वक्तन फ़वक्तन मुलाकातें होती रहेंगी मुख्तलिफ जगहों पे। मलेशिया मैंने जाना है अभी, कल वहाँ जाऊँगा, वहाँ मुलाकातें होंगी। इसी तरह मैं और जगहों पे भी जाऊँगा और इंशाल्लाह मुलाकातें करूँगा आप सबसे। आप लोग खुश रहेंगी। थैंक यू वेरी मच। आई नीड ऑल योर सपोर्ट। मैंने आपको बता दिया कि मेरे 2 मेजर मकसद हैं यहाँ। एक पाकिस्तानी कम्युनिटी की सर्विस करना, दूसरा जो है तिजारत के हवाले से अगर आपके पास कोई अच्छा आइडिया है, अच्छी चीज़ है, कोई इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई चीज़ है पाकिस्तान में, या अगर कोई बैक एंड फोर्थ पाकिस्तान से यहाँ लाने की कोई ऐसी चीज़ है जो आप समझ रहे हैं कि यहाँ लाई जा सकती है, यहाँ इंट्रोड्यूस कराई जा सकती है, मार्केट की जा सकती है, ब्रांड की जा सकती है, वो ज़रूर आप उससे डिस्कस करें। और बैक एंड फोर्थ मतलब फ्रॉम इटली टू पाकिस्तान भी वो पॉसिबिलिटीज हैं। आई थिंक इटली की काफ़ी अच्छी खासी ट्रेड है हमारे साथ, पाकिस्तान के साथ। जर्मनी के बाद आई थिंक 2nd लार्जेस्ट ट्रेड हमारी इटली के साथ ही है, जो जहाँ तक मुझे स्टैटिस्टिक्स का पता है। तो मैं चाहूँगा कि इस हवाले से हम काम करें। और कम्युनिटी के हवाले से जहाँ तक बात है, मैं सीधी बात करूँगा, देखें कम्युनिटी जो है हमें सबसे ज़्यादा अजीज़ है, क्योंकि हम आए कम्युनिटी की वजह से। और कम्युनिटी के हवाले से जहाँ तक बात है, मैं सीधी बात करूँगा, देखें कम्युनिटी जो है हमें सबसे ज़्यादा अजीज़ है, क्योंकि हम आए कम्युनिटी की वजह से। कम्युनिटी से मिलूँ, बात करूँ, सबसे अच्छा और आसान तरीका यही होता है, मसला जितना बड़ा हो, जितना भी गंभीर बात हो, बैठ के बात की जाती है, बैठ के मसले हल किए जाते हैं। दिस इज़ व्हाट आई डू, दिस इज़ व्हाट माई जॉब इज़, दिस इज उसके लिए मुझे ट्रेनिंग मिली है। मैं डिप्लोमेट हूँ, मेरा काम है बात करना, बैठना, बात करना, मसले हल करना। मसले जितने भी गंभीर हों, जितने भी उसका मैग्नीट्यूड हो, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप लोग बैठें, बात करें, हल ढूंढें। हल हर चीज़ का होता है और उसी में हमारी बेहतरी है। मैं बस इतना ही, आई थिंक आई कट शॉर्ट, और मैं इतना कहूँगा कि आपको जश्न आज़ादी मुबारक हो। आपको इस मौके पर सिर्फ हम एंड में जब दुआ के लिए खड़े होंगे तो हमें अपने उन शहीदों को याद रखना है जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी। पाकिस्तान नहीं देख सकते हो, लेकिन उन्होंने कुर्बानी दी जिसकी वजह से पाकिस्तान बना। और उन शहीदों के लिए जिन्होंने पाकिस्तान की जंगों में हिस्सा लिया,
पाकिस्तान की वॉर ऑन टेरर में हिस्सा लिया, जिसमें कई सिविलियन थे, जिसमें फौजी भी थे, जिसमें पुलिस के लोग भी थे, वो लोग भी थे जिन्होंने मुल्क के लिए जान दी, नजराने पेश किए। हमें उन लोगों को भी याद रखना चाहिए। तो बस दैट्स इट। आई थिंक वी विल कैरी ऑन टू द डॉक्यूमेंट्री। और बहुत शुक्रिया पाकिस्तान। अब एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री है जो मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारी टेक्निकल टीम से कि वो من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين। जो लोग यकीन रखते थे कि उनको अल्लाह के रूबरू हाजिर होना है, वो कहने लगे कि बसा औकात थोड़ी सी जमात ने अल्लाह के हुक्म से बड़ी जमात पर फतह हासिल की है और अल्लाह साबित कदम रहने वालों के साथ है। Where terrorists opened indiscriminate fire. There are reports coming in of 4 tourists who have been targeted. They've been attacked by the terrorists in Pahalgam. Well, telltale signs of Pakistan's involvement is now emerging behind the Pahalgam terror attack. This confirmation is clear now that there were Pakistani terrorists. Pakistan is not willing to digest that so much improvement has taken place in Jammu and Kashmir. बिहार का चुनाव आ रहा है, पुलवामा हुआ, चुनाव आ रहा था, पूरी में अटैक हुआ, उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुआ और इसीलिए अभी जो कुछ हुआ वो मैं मानता हूँ कि पूरी तरह से वो बिहार के चुनाव को ध्यान में रख किया जा रहा है। शुरू से लेके लास्ट तक ये स्क्रिप्ट नजर आती है। श्रीनगर से आप जाते हैं पहलगाम, उसमें 11 चौकियां पड़ती हैं। 400 किलोमीटर दूर एल्बोसी से कोई आके 1.5 घंटा पहले आगे रास्ता है, उसमें से वापस चला जाता है। तो ये बीएसएफ में क्या ये मेट्रो ट्रेन चल रही है पाकिस्तान और इंडिया की, जो बीएसएफ वाले आके बंद करके बैठे हैं, वो आते हैं और चले जाते हैं। भारत के पास प्रूफ तब होता है जब वो बीएसएफ वाले उनको कहीं पकड़ लेते हैं, आते बार पकड़ लेते हैं, जाते बार पकड़ लेते हैं। हर बार जो मिलिटेंट ये को आते हैं, उग्रवादी जिनको बोला जाता आते हैं, वो मिलिट्री की भर्ती नहीं क्यों आते? These people need to be sacked, and if they are not sacked, if they are not giving marching orders, then why should I not presume? Why should we not presume? Why should an indebted nation to the armed forces not presume that this is happening at the PS and with the political patronage of the Prime Minister? ये तो बहुत प्रेशर में कर रहे हैं, लोगों को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं। इनको तो मुल्क से माफी मांग दी, इनको कहना चाहिए था हमारी गलती। इतनी बड़ी इतना बड़ा लैप्स है, वहाँ एक सिपाही नहीं था और जबकि वो कश्मीर का सबसे पॉपुलर स्पॉट है। हमले के 3 दिन पहले ही वहाँ इंटेलिजेंस रिपोर्ट मोदी जी को भेजा था और उसीलिए मोदी जी ने कश्मीर जाने का प्रोग्राम कैंसिल किया। मोदी को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर दोबारा चाय बेचनी चाहिए। सफर इंच का सीना है, ना रगड़ कर जीना है। नरेंद्र मोदी सरेंडर मोदी हो गए हैं। नरेंद्र मोदी इस देश के सबसे नकारा प्रधानमंत्री साबित हुए हैं। नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल देश को पोखरा कर दिया है। अब पछताए हो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, अब जाकर हरियाली आंसू बहाएंगे और रुमाल से नाक पोछने से क्या होगा? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो अजीत डोभाल के बारे में कहा जाता है कि एकदम जेम्स बॉन्ड के परदादा है, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। और देखिए अभी कहाँ है डोभाल, क्यों ऐसे हमले हो रहा है? जो पहलगाम में हुआ था बहुत बुरा हुआ, ऐसा कभी हुआ नहीं। एक बार नहीं मिलते, लोग गायब हो गए, जंगलों में चले गए, खत्म हो गए, किसान खत्म हो गया।
एक चीज का प्रूफ नहीं मिलता। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਫੇਲਿਅਰ ਹੋਇਆ ਜੇ ਫੇਲਿਅਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਫੇਲਿਅਰ ਤਾਂ ਹੈ। I will only say, as I said before, that war is the last battle. अब देश में बिहार का इलेक्शन आ रहे हैं, इसलिए कश्मीर का मुद्दा आगे कर रहे हो। हमारे सैनिक बल इतना ताकतवर है, एक परिंदा भी पर नहीं मर सकते। तो कैसे आए टेररिस्ट? अरे मोदी भाई, आप तो अंबानी अदानी की गुलाम है। एयरपोर्ट बेच दिया, विमान बेच दिया, ट्रेन बेच दिया, गाड़ी बेच दिया, प्लेटफॉर्म बेच दिया। आप सिर्फ एक चाय नहीं बेचे हैं, बाकी सब बेच चुके हैं। बीजेपी वालों ने करवाया, ये जो बीजेपी की सरकार है, माहौल खराब हो जाएगा, भाईचारा खत्म हो जाएगा। पूरा नहीं करा रही। अगर ऐसे ही ये सरकार करती रही ना, कुछ दिनों में हर गली में एक मस्जिद मिलेगी। जो लोग आए वो कैसे आए, किसकी वो बलबूते पाए? यही सवाल विपक्ष आज कर रहा है कि इंटेलिजेंस क्या कर रही थी। आतंकवादी आए जैसे प्लेग्राउंड में घुस आए, हमारे लोगों पर धड़क गोलियां चलाई, हमारे लोग शहीद हो गए और उनके लिए खुले थे रास्ते। ना कोई चेक पोस्ट, ना कहीं कोई पूछताछ। जैसे मारने के लिए आए वैसे ही मारकर हमारे लोगों को भाग गए। कोई पूछताछ नहीं, कोई देखने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं। पहलगाम जैसे एरिया, सेंसिटिव एरिया को आपने एक भी आर्मी का जवान वहाँ 2000 से ज्यादा पर्यटकों के लिए छोड़ा नहीं। मुझे बताओ मेरे देश के बच्चों, क्या ये सवाल वाजिब नहीं है? कौमी सलामती कमेटी ने भारतीय सिफारती और आबी जारहियत का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए वजारत खारजा की सिफारिशात मंजूर कर दी है। भारत की किसी भी किस्म की मुहिमजोई का मौसर जवाब देने की हिकमत अमली पर भी गौर किया गया है। Tragedy in Belgaum is yet another example of this perpetual blame game, which must come to a grinding halt. And now, continuing with its role as a responsible country, Pakistan is open to participate in any neutral, transparent, and credible investigation. 7 days have passed since Pahalgam incident, but so far there have been no shred of evidence that has been provided to support the baseless allegations being made against Pakistan. की मकबूजा कश्मीर पेट्रोलिंग और 29 और 30 अप्रैल की रात पेट्रोलिंग की है। भारतीय से तैयारी गोखला का शिकार को कराते थे। हम तैयार हैं, आजमाना नहीं। वी आर रेडी, डोंट टेस्ट। India launched Operation Sindoor against Pakistan. Multiple strikes we've been given to understand have taken place. मलबा है जो मुख्तलिफ जगहों से उठाया गया है ऑफ दिस ड्रोन्स, आरपी और एरोन के ये ड्रोन जो इसराइली ड्रोन है, ये फर्क 6 और 7 की और 7 और 8 की रात में इतना है कि 6 और 7 की रात को ये मलबा उन्होंने खुद उठाया था। इस बार ये हमले जमा किया 6-7 के जहाजों का मलबा था, उन्हें खुद उठाना पड़ा। आपने देखा होगा मीडिया में, सोशल मीडिया में कि मुख्तलिफ जगह से अपने जहाजों का मलबा जमा करते थे। इनका हमें मलबा हमने खुद जमा कर, और ये ऐसे ही फर्क है कि 2019 में चाहे इधर आके भी थी 6 और 7 की रात को हमने चाहे वहाँ हो सकते। बल्कि 5 तैयारे मार गिराए हैं। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए भारत के 5
जंगी तैयारी तबाह किए हैं। Pakistan claims it has shot down 5 Indian fighter jets and will retaliate further following yesterday's attack from India. In retaliation, Pakistan claims to have shot down 5 Indian aircraft. Pakistan claims it has shot down 5 Indian jets and a drone in retaliation to India's airstrikes. Well, there's growing evidence that India lost prized fighter jets during strikes on Pakistani-controlled territory, a setback for the Indian military amid escalating tensions after last month's terror attack in the disputed region of Kashmir. French intelligence has already told us that a state-of-the-art Rafale fighter jet made in France and operated by the Indian Air Force was down. Now also Pakistani claiming to have drawn blood as well from India with as many as 5 jets shot down. The downing of the Rafale jets, these are the French-made fighter jets. Pakistan should take pride in the fact that they were able to shoot them down. Certainly a reaction from Pakistan, even though they reportedly have those 5 Indian fighter jets and that drone. Pakistan says this is wreckage from one of the 5 Indian aircrafts it says it shot down. आज मैं कौन को ये बता सकता हूँ बिना कॉपी तकलीफ के 5 जहाज नहीं इन शाहीनों ने 6 जहाज बना दिए। मासूम शहरियों के नाहक खून के आखिरी कतरे तक का मुकम्मल हिसाब लिया जाए इंशाअल्लाह। भारत ने जारियत करके तो काश उसका खमियाजा अब उसे ज़रूर भुगतना होगा। अल्लाह ताला के फजल करम से बहादुरों की कौम है जो अपने अज़्म में फुलादी है, जिसके सपूतों ने खुद को मैदान जंग से निखारा है, जो अपने वतन की इज्जत और हिफाजत के लिए खून के आखिरी कतरे तक लड़ने के लिए तैयार है। हम ये अहद करते हैं कि इन शहीदों के खून के एक एक कतरे का जरूर हिसाब दिया जाएगा इंशाअल्लाह। पाकिस्तान अपनी दफा में मुंह तोड़ जवाब देना जानता है। पाकिस्तान की इज्जत सालमियत और दफा के लिए फौज और अवाम यकजान दो तालिब हैं। आपकी आर्म फोर्सेज आर फुली अलर्ट। आपने देखा कि जिस बहादुरी के साथ आर्म फोर्सेज ने और पर्टिकुलरली पाकिस्तान की एयर फोर्स ने 75 से 80 इंडियन फाइटर जेट्स को उसका मुकाबला किया और 5 को जमीन बोझ किया और 2 UAV गिराए। आपकी एयर फोर्स, आपकी नेवी, आपकी हुकूमत सब अलर्ट है। अगर किसी किस्म का कोई एडवेंचर इंडिया करेगा, वी विल ट्रीट इट एज एक्ट ऑफ वॉर।
كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. And the translation reads, how many times it happened that a smaller force vanquished a bigger force by the will of Allah. History has proven that the complete nation and its armed forces have always stood together with all their might against any act of aggression. Alhamdulillah, we have the will, capacity and capability to protect our sovereignty and territorial integrity, and we are all well aware of the ways and means to do it. Our forefathers, they have sacrificed immensely, and we have sacrificed a lot for the creation of this country, and we know how to defend it. If this great Pakistani nation and the Pakistani armed forces, if 1.3 million Indian army with all their wherewithal, if they cannot intimidate us and they cannot force us, these terrorists can subdue the armed forces of Pakistan. हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि ना हम तुम्हारी ताकत, ना तुम्हारी मकारी और तुम्हारी जालियत से मरूब होने वाली कौम. Now you just wait for our response. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. इन्नल्लाह युहिब्बुल्लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुन्यानुम मरसूस. जो लोग अल्लाह की राह में ऐसे तौर पर सफ बांध कर लड़ते हैं कि गोया सीसा पिलाई हुई दीवार हैं. Indeed, Allah loves those who fight in His cause in a row, as though they are a single structure joined firmly. Bismillahirrahmanirrahim. Today, on 10th May, at the time of Fajr, we have given a strong fight. Alhamdulillah. This is a smashing response from our enemy, and it will inshallah continue. decisive punch of Bunyanul Masoos. Allahu Akbar!
इंडिया के मीडिया की जरूरत नहीं सकता है. The whole world will come to know. The reverberations will be felt everywhere. Pakistan says the country has launched a retaliatory military operation against India. We have seen this pattern of strikes in the morning, then retaliatory strikes at night. It is hard to imagine from this moment where I stand that New Delhi won't want to respond. Pakistan's army set an eye for an eye. It's claimed that this counter-offensive is ongoing and that it's targeting air bases in India from which missiles have been launched. Just after morning prayers, there were series of loud explosions were heard across Jammu and Kashmir, including Uri, Nagrota, Jammu, Udhampur, as well as the major cities of Srinagar and Jammu. They hit 8 air bases inside of India and Indian-controlled Kashmir. And those air bases, one of them they say that they hit a sophisticated air defense system, and another one that they say that they've taken out a missile storage. Pakistan's military says the strikes are in retaliation of what it calls Indian aggression. Pakistan responded with a relentless, a massive barrage of missiles and rockets, Pakistan says, into Indian military facilities, bases inside India, air bases, weapon storage, and along that disputed line of control in Kashmir against military bases. India, according to Pakistan, reached out to Secretary Rubio, reached out to the Saudis, reached out to the Turks, reached out to others to find a diplomatic off-ramp, got engaged after that onslaught in diplomacy, but telling the mediators that they were going to go on a pause on the Indian side. घबराहट तो लोगों की नजर आ रही है क्योंकि तमाम एयरबेस ध्वस्त होते हुए नजर आ रहे हैं, आपके गोले में बदले हुए नजर आ रहे हैं. सबसे ज्यादा जो चर्चा है वो ये कि जब आप अपनी एयरबेस को नहीं बचा सकते तो जनता को क्या बचाएंगे? एयरबेस पे हमला होया, दूसरे पास जम्मू एयरबेस पे हमला होया. ये पाकिस्तान की साइड से है. देखिए अब हमें आवाज से ही पता लग जाता है, जो सीटी बजाता है तेजी से आता है और हमारे करीब जोरदार आवाज के साथ फटता है, वो पाकिस्तान की तरफ से फेंका गया, वो छुड़ता है. पठान हमारा आगे उसका एडवांस एयरबेस है, बहुत है. उन्होंने उधमपुर में किया है, ये किया है, श्रीनगर के पास में किया है, बंकीपुर में. सिरसा को आपने बताया एयरबेस है वहाँ पर, उसको उसने टारगेट किया है और तो वो ड्रोन्स के साथ साथ अपनी बड़े मिसाइल भी दाग रहा था. उसके साथ साथ जम्मू के अलग-अलग इलाकों में आप सुनाई दे रही है. The attacks have been coming in from the Pakistani forces. We saw how they lit up the entire border area all the way from the north in Kupwara, in Uri, where the ceasefire violations were taking place. Then we saw the drone strikes which were taking place in the Jammu area, all the way down to Bhuj. See, didn't the whole world hear and report? Because that's what we promised. The armed forces promised and delivered that. Indian armed forces reiterate their commitment to non-escalation, provided it is reciprocated by the Pakistan military. भारतीय सशस्त्र बल दोहराते हैं कि वे तनाव वृद्धि नहीं चाहते, बशर्ते पाकिस्तान भी ऐसा ही व्यवहार करे. पुलवामा की तरह उस वक्त भी 13 दिन के बाद इंडिया ने एक कदम उठाया. 23 की रात को कॉल आते रहे फॉरेन ऑफिस के हवाले से कि जी पाकिस्तान क्या करेगा, तो मैंने एक ही बात की कि इंशाल्लाह हम टिट फॉर टैट करेंगे. वी विल नॉट बी द फर्स्ट वन टू टेक एक्सट्रीम मूव. ये हमने क्लियर कर दिया, अब इनका जवाब पत्थर से देंगे. पाकिस्तान एयर फोर्स इज अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ द स्काइज. The armed forces of Pakistan express their profound appreciation and gratitude to the brave Pakistani nation whose moral strength, resolve and above all wholehearted support and prayers remain unwaveringly with us during these testing times, which became a force multiplier for the armed forces of Pakistan. PA versus IF, 6 men. One of the US has overshot the target and gone ahead. And this is the radar picture. You can see that they are going, this BrahMos will miss the target and go ahead and fall in some no man's land. Now this BrahMos is crossing on top of Shabazz and it is going towards our western border, almost to our neighboring country, towards that. You can see this is going there, it's going ballistic. Now they are not even threatening their neighbor, they are threatening the regional stability of the whole continent.
within a short span of time of couple of hours, we had really saturated our friendly neighborhood. The Pakistan Navy American Air Arm, they were proper ready to generate any kind of response at all times. Next time when you think of Pakistan Navy and the silent guy, please remember that with the help of Almighty Allah, our actions will always speak louder than words. We are a peace loving nation. We want peace within and without. हम सिर्फ aggression को जवाब देते हैं और फिर टका के देते हैं ताकि किसी की दोबारा अंजाम ना हो हमारी तरफ होगी तो फिर हम आगे वयमकुरूना वयमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन. They plan and Allah plans and Allah is the best of Indian jets were downed. Is it correct in that estimate? That is not information which I said is important. What is important is why they were down. That is more important for us. If we look at the air battle, this is where Pakistan got its pound of flesh. It is 99% certain that India lost 2 aircraft, which were Rafale. And it's very probable India lost up to 5 aircraft. Some runways have been cratered, but there has not been massive destruction. There's no evidence for that, and there's certainly no evidence. In fact, I'm astonished by the claim that 20% of Pakistan's Air Force has been rendered unusable. I've never heard that before. It's quite an astonishing claim and most certainly to be false. पांच पाकिस्तान ने अपने जहाज को भी इसका गिराया था. चाइना ने जो जब हवाई जहाज दी थी वो बहुत बढ़िया हवाई जहाज थी. फ्रांस के जो थे वो उतना बढ़िया नहीं थे हवाई जहाज. उन्होंने 5 को गिराया था. मुझे लगता है कि जो बात सीरियस अनिल चौहान ने कही वो चीज तो पूरी दुनिया को 7 और 8 मई को पता थी, सारे अखबारों में पता थी. जो बात सबको मालूम थी वो ऐसा अलग से जिसके बारे में उसको छुपाने की कोशिश क्यों की जा रही है. DGMOs की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें जब DG एयर से सवाल पूछा गया तब उन्होंने कहा कि नुकसान की बात करने का वक्त नहीं दिया. ऑस्ट्रेलियन कॉन्ट्रैक्ट Rafale fighter aircraft were down the 4-day operation. Air Marshal Bharti, the DG Air Operations in the DGMO briefing, he said losses are normal in a combat. The objectives of the full operation have been achieved, but all the pilots have come home. You know, we are in a combat scenario, and losses are a part of combat. Chief of Defence Staff admitted there were losses. He insisted the numbers are not important. Numbers are important, and if numbers were not important, General Chauhan or someone else would have accepted them. The fact that there's so much of corruption in India and so much of anger amongst supporters of Mr. Modi that why this conversation is happening clearly points to the fact that numbers are important and numbers do matter. All over the place, the DG era or whatever the Vice Marshal Aurangzeb was all over the place, showing this presentation, the Indians were practically missing in the bargain. The dominant narrative that went in the first 2 days was that the Pakistanis had invested up on that night and really unfair. DGMO level talks were going on. Pakistan actually was mentioning that we know that your such and such important sort of vector is primed and it is ready for action. I would request you to perhaps, pull it back. ज़्यादा पैसे यार बंद कर दिया. अच्छा
दावत देना चाहूँगा जनाब काउंसिल जनरल साहब को कि वो आए और दुआ से इस प्रोग्राम का इख्तिताम करें और केक कटिंग सेरेमनी करें। सर प्लीज। आपने वीडियो देख ली है और मतलब मैं समझता हूँ आज मेरा सर फख्र से बुलंद है। आई एम श्योर कि तमाम पाकिस्तानियों का सर फख्र से बुलंद है क्योंकि हमारी पाक फौज जो है हमारे लिए हर ही तैयार है अपनी जानों के नजराने पेश करने के लिए और मुल्क के दिफा के लिए। और हमारा फ़र्ज़ होना चाहिए महसूल कौम महसूल पाकिस्तानी होने के नाते, नहीं कौंसल जनरल या कोई नहीं, हर पाकिस्तानी जो भी पाकिस्तानी है जो भी पाकिस्तानियत में यकीन रखता है उसको अपनी पाक फौज के साथ खड़ा होना पड़ेगा। आज खड़े होंगे तो पाकिस्तान आगे इंशाल्लाह तरक्की करेगा। दुआ करें जी प्लीज़ पाकिस्तान के लिए, अल्लाह ताला पाकिस्तान को हमेशा कायम दायम रखे, पाकिस्तान के खिलाफ जो गंदी नज़र है उसको हमेशा के लिए ख़त्म करे, पाकिस्तान को तरक्की दे, पाकिस्तान में कामयाबी दे हर फील्ड में, साइंस हो, जंग का महाज हो, सियासत हो, डिप्लोमेसी हो, स्पोर्ट्स का मैदान हो। और आपको जो खुशखबरी मैं सुनाना चाहता हूँ, मैं हॉकी खेलता हूँ तो पाकिस्तान की टीम पहली दफ़ा प्रो लीग हॉकी खेल रही है, तो उसके लिए हमने दुआ करनी है कि वो परफॉर्म करें ताकि वो जो एक मुश्किल टाइम था जिससे पाकिस्तान हॉकी गुजर रही थी उसका जो है ना अजाला हो। और मैं चाहूँगा कि हम तमाम उन शुहदा की, उन लोगों की जो फ़ौज में, जो मिलिट्री में, जो सिविलियन, जो पिछली 20 सालों में जो हमारी जो वॉर ऑन टेरर रही है, जिसमें हमने बड़ा कठिन वक्त गुजारा है, जिसमें हमने इतने सारे मासूम लोगों की जानें गई हैं, उनकी मग़फ़िरत की दुआ करनी चाहिए और अल्लाह पाकिस्तान को तरक्कियों की मंजिलें तय करने की तौफीक दे। हम सब को पाकिस्तान के लिए अपने अपने लेवल पे, अपने अपने जहाँ पे भी हम बैठे हैं, चाहे हम इटली में बैठे हों, जिम्बाब्वे में बैठे हों, US में बैठे हों, जहाँ पे भी जिस कैपेसिटी में हैं हम पाकिस्तान के लिए कोशा हैं। थैंक यू वेरी मच। ठीक है।
पीछे 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 मीडिया मीडिया वास्ते जगह छड्डो जी भाई जी सर बुजुर्गों थोड़ा जा मीडिया वास्ते जगह छड्डा जी बुजुर्गों थोड़ा पीछे हो जाओ बुजुर्गों साइड पे और साइड पे आ जाओ हाथ पीछे रखना जरा सर अभी इधर देखिएगा सर इसको बंद करवा दे ये लाइट बंद करवा दे प्रोजेक्टर ऑफ करवा दे बंद कर ये आप ही कैमरा पीछे करिए थोड़ा सा एक और चलो पहले आगे बाहर जाने से रास्ता लेते पहले राइट में बजियां भाजी चला है राइट पे लगे और राजा साहब वो पंजाब का अपना ही रंग है